Good afternoon, everyone. Welcome to this inspiring online workshop on digital pedagogy for Navodaya Vidyalaya teachers, organized by Thrive Effective Education, which is an initiative by the Office of the Principal Scientific Advisor (PSA) to the Government of India and Cluster Innovation Center, University of Delhi. It is a privilege to have each one of you here today for this workshop where we embark on a journey to explore a section of education and technology shaping the future of learning for our students. In the rapidly evolving landscape of education, embracing digital pedagogy has become not just a choice but a necessity. In this workshop, we are going to talk about creating innovative videos, digital concept maps, digital content, advanced presentations, and digital lesson plans, which will further enhance classroom engagement, encourage collaborative learning, and prepare students to be digitally literate citizens. The Cluster Innovation Center takes immense pride in fostering a spirit of innovation and learning. Our objective is to bridge the gap between traditional teaching methods and modern technology driven pedagogy. This workshop serves as a testament to our commitment to continuous learning and adaptation. On first day, we will be talking about visual learning, video creation for educators. On second day, we will delve into the AI artistry, crafting concept maps with technology. Going on in third way, we will discuss about creating engaging digital content for effective learning. Fourth day of this workshop, we will slide into the future advanced AI tools for PowerPoint. Whereas last year workshop is about teaching in Technicolor, mastering AI tools for vibrant lesson plans. Throughout this workshop, we will delve into the realms of digital learning, discovering ways to engage, inspire, and empower our students. We will explore interactive teaching techniques, educational apps, and online resources that can revolutionize our classrooms. As we engage in this workshop, I encourage each one of you to actively participate, ask questions, and engage in discussions. Let us seize this opportunity to learn from one another, to collaborate, and to shape the future of education for the bright minds of Navodaya schools. Now, I would like to request Professor Jyoti Sharma, Principal Investigator of Drive Effective Education and a practicing professor of mathematics education at Cluster Innovation Center, University of Delhi, to share her valuable thoughts on this workshop with our participants. Good afternoon, everyone. Thank you, Kritika. We welcome you to this online workshop on digital pedagogy. So mainly we'll be focusing on digital tools which teachers can use in their classrooms to make their learning more effective. First of all, we wanted to organize an in-person workshop because meeting face-to-face and having interaction in person, talking to students, talking to all the participants, it gives you more insights about your learning patterns, your learning needs. But yes, we can understand that there are constraints of time, constraint of distance. So we thought, let's interact online, and whenever there is a time, we can join, we can have next round of workshop for a limited participants in person. Because first of all, let me briefly tell you about what DRIIV Drive stands for. The Office of Principal Scientific Advisor is the highest office in the government segment, which advises Prime Minister Office on the science and technology developments and the future roadmap for the country. This office also has a mandate to find scientific solution to the problems of the country. So under this initiative, the PSA office has initiated 12 city knowledge clusters. These city knowledge clusters
talk about the very peculiar problems of a city. So, for example, Delhi City Knowledge Cluster will talk about typical problems of Delhi NCR. Pune City Knowledge Cluster will talk about the very typical problems of Pune cluster. So, Delhi City Knowledge Cluster, which is called RISE, it has 7 verticals. All these verticals work into different aspects. For example, air pollution, solid waste management. Then effective education is one of the vertical. Fine. So under effective education vertical, we to help school education and higher education in the country to minimize from technological advancements, not within country, but available in entire globe. So here today we are bringing you to some of the most usable, most easy to handle, but most powerful ICT tools which you as teachers can use it in your classroom. So we are not going into the subject domain. So because we know that you teachers are from different subject domains. So we are not talking about maths or science or social science or languages specifically, but we'll talk about the larger ICT tools. So for example, concept map. So there are various methods, there are various open resources where you can build very constructive, very creative concept maps. The concept maps which you can use as a teacher, which your students can use, which you can use as a team in team teaching, and then you can share it with your national or international global partners. So students, so this workshop will be mainly taken care by the students of MSc Mathematics Education who are expert in ICT tools. Mr. Anurag Saini will be the lead resource person for the workshop. And Mr. Anurag is a guest faculty in CIC and an expert in ICT, working in this area for more than 10 years. So he'll be the lead resource person. These students will be here taking you to this journey of learning digital resources. Professor Kusuma from MCRC, Jamia Millia Islamia. MCRC is one of the finest institute of media communication in the country. Professor Kusuma is an expert in digital learning. So he'll be taking one of the sessions. These students will be taking few sessions. So every day they'll be introducing you to the one new ICT tool. So there'll be some assignments, there'll be some breakout rooms where you people can learn in groups, and definitely the channel of discussion, the channel of raising any concern, the channel of learning. If you are stuck anywhere, so we all are here to help you in this journey. So because you all are teachers and we appreciate your time and effort joining us in this endeavor. So we look forward to a very constructive partnership. And after this workshop, 5 days workshop, we hope that we'll be able to identify some master trainers who can help us to scale it up to the larger teachers community. So we wish you all the best, and I hope you'll have a very constructive and enjoyable learning. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts. Once again, I extend my warmest welcome to all the participants for dedication to the noble profession of teaching. Now, I would like to request our today's speaker, Mr. Abdul Shakur and Mr. Rana, to start the first list for educators. Thank you, Kritika, for calling me here. I once again welcome all the JNV teachers for joining on in this session, and I am pretty sure all of you are as excited as we are today to learn the digital pedagogy. To start off with, I expect all of you have joined from laptops. It is pretty much advisable to join from laptop because the tool that we are going to show, we want all of you to participate it parallelly in that. And as we go through the options and as we go through the website, I want all of you to parallelly follow those steps so that you get a hands-on experience on what we are
showing. Ultimately, doing it yourself will eventually lead to the conversion of that skill. Let me start with sharing my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Right. So, in this module, we are going to learn the basics of video creation for educators. Uh, there won't be two opinions if I say that the video learning mode is one of the finest mode to gain what do you call, to increase the retaining time for a student. Since in video, in mode there are a lot of what do you call, the senses involved, and especially the visual and the auditory senses, and this is directly proportional to the amount of the time of retaining their knowledge. So this eventually makes it incumbent on the teachers, on the educators like us, to learn these the this skill. You might have you know you might have thought about it whenever you receive videos on WhatsApp and on any other platform like YouTube Shorts and all. Sometimes you see very amazing videos. I mean, the animation and the things that go on, and you actually save it to show it in your class. And at the same time, you might have wondered as well. I mean, how do you? What if this would have come with a small change, because it is that video is not customized to your class. So what if I could add this one text, or what if I could add this animation in some other manner so that I could use it. But eventually, we all are, we can use the ready-made videos very easily. But about creation of a video, we think that it might require a lot of processes. Okay, but that's not true. At least in this generation that we are, the technology and the softwares have advanced so much that the entire computing system has come down to a very simple drag and drop option. And in this module and in this workshop, we are going to learn those very basics of video creation, which is essential for educators. This is we It is expected that this module will equip all the teachers with those basic jargon and the basic terminologies and those options which will make you enable to create any video in a very short time without a lot of technical knowledge involved in it. I would be using the tool Animaker to describe the video creation. There are specific reasons why we are using Animaker, and regardless of that, the options and the terminology that we would be using is pretty much the same all across the platforms. So not just Animaker, you can find out yourself any other similar alternative platforms and use the same options to create your own video. Before we start with Animaker, uh, I would like to inform you that there is an assessment for every module that you need to participate and submit. And based on these assessments, we your grading and all would be done. I think this was communicated earlier in the rules and regulations. So we are going to follow this format, and the specific assessment for this workshop, for today's workshop, is that you need to create a small 1 minute video, and you need to create it as we are going through, as I am showing you the options. You also need to do it parallelly on your laptops, and in the end of this session there will be a small 20-minute assessment session in which you can sum up your entire video and then download it, and you need to submit that small clip in the assessment tool. So I hope that one thing is clear. Before I move to the next slide, is there any questions so far? Are we good to start for the on the next slide? Voice is not clear. Yes, sir. Fine. So I move on to the next slide, and in this slide we'll see what is Animaker. Animaker is a simple web-based video creation platform. By web-based, it means you don't require to download software for it. It is completely on web platform. So you just need to open a website, and then you need to start your editing and everything. But this is a web-based platform that allows you to create animated videos, presentations, and multimedia content. It allows you very easily.
Essentially, this is a paid website. However, it provides a free package as well, and the freedom that it provides in free package is pretty much enough for a basic beginning on video editing. So I hope for educators like us, we are not into the professional industry of video editing. We just want to make small videos for our classrooms. So given that usage, the free version of it suffices pretty much good. It allows you to make 3 videos per month. So it works on your mail ID, and in one mail ID you are allowed 3 videos to edit and download finally. And it allows you to create a video length of 2 minutes. It allows you a 2 minute of video length per video. It gives you 10 GIFs as well. So another alternate of video is GIFs, which looks and works almost the same way. We commonly use GIFs over WhatsApp. So it just that it does not have audio. It just have the animation also. You can create GIFs as well. It allows you 10 GIFs per month. And additionally, if you were to add subtitles in auto generated format, then the free version gives you 50 minutes of subtitling of your video. And if you were to use your specific images, or if you want to get a small video clip from somewhere and put it in your video, then edit it further. So it requires to upload your file on their servers. And in the free version, it gives you a space of 2 GB to upload your files on its servers. Yeah. For a very basic usage, all of these free package suffices. This is the website where you will find the Animaker, app.animaker.com. Well, as I was talking in the first slide, why should an educator use it? Again, it has a lot of benefits, and one direct benefit is that 90% of the information that is transmitted to brain is through visual aids, visual and auditory aids. So we are going to make the student use these additional aids besides reading and comprehending, so that his learning is enhanced. This is all to enhance the learning of the student, and so that he gains a more retention time. And definitely videos bring the concept to life. About the software that we are using, the tool that we are using, Animaker, it has a very easy user interface. So if you are a person who has never been into technology, who has never been into computers and all, it is still easy for you to use it. It only has drag and drop options and no technical jargon, so that any of you can start off very easily. Besides the easy user interface, this website allows you, it has a feature of avatars and animated characters. So you can actually replicate your own self in a form of avatar, which has a lot of animated actions. So that brings your video more lively. It is as good as you teaching to the class yourself. Or I mean, you can create your own character there and animate it, and animate all the other elements that are around, and in the end the video will look very lively. So as good as you are in front of the students and you are dictating and you are teaching them. So that is a benefit of using Animaker. Before we jump into the website, there are a few steps that are involved in any video creation, no matter you are doing it for whatever usage. These steps go on parallelly, and as I describe these steps parallelly, I urge you to follow these steps for your assessment or for your assignment that you are going to submit in the end of this workshop. Okay. So any video creation process, it should first start with planning and script writing. Okay. This is equivalent to the lesson plan that we make. We make the lesson, we have the concept in our mind, we convert it into a lesson plan. Lesson plan guides you to in your class. I mean, it maneuvers you about the 40 minutes that you are going to spend in your class. The same analogy, using the same analogy, the script guides your video length and whatever you are going to speak here. Script basically involves dialogues, and besides dialogues, it involves the placement or the ordering of the information that you keep, the flow of the class or the concept that you want to follow. So all of these come under script.
So at this point, I urge you to think about any topic that you would create in the video if given a chance after during this workshop. So whatever subject domain you come from, and if you were to create a small video about it, so try to think of that topic and how you are going to sequence it, and that forms the part of your script. We can spend a minute here and think about whatever video you are going to create in the next slide when we are actually going to work on Animaker. And if there are any questions in the middle of, or if there are any uh, inconveniences, you can write it in the chat box or unmute yourself and speak. I hope all of you have thought about it. आप सबने कुछ सोचा कि आप किस किस बारे में वीडियो बनाएंगे? किसी ने कुछ सोचा हो तो बता सकते हैं अनम्यूट करके। हम आधे मिनट में 30 सेकंड्स में फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होंगे। Has anybody thought of any topic जो आप वीडियो बनाएंगे आज के दिन आप जिसकी वीडियो बनाएंगे? एक्सक्यूज मी सर, यस सर। मैंने सर 9th क्लास का टॉपिक जो है वो सोचा है फिजिक्स का, बुयांसी फोर्स। बुयांसी फोर्स, अच्छा एक्सीलेंट। 9th क्लास में बुयांसी फोर्स पे आप बनाएंगे, ठीक है, वेरी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप सबके ध्यान में कुछ ना कुछ तो एक टॉपिक होगी। अभी हम वीडियो क्रिएशन के प्रोसेस में अगला पार्ट देखते हैं। सेकंड इज गैदरिंग एंड क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट। ये वीडियो क्रिएशन में सेकंड स्टेप आता है। इसमें आपको, जैसे सर आपने बताया बेयोंसी फोर्स पे आप वीडियो बनाएंगे, तो अब आप सोचिए कि आपको किन डायग्राम्स का यूज होता है। तो आपको जो डायग्राम्स लग रहे हैं इसमें, यू माइट नीड अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, और फिर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। तो ये जो विजुअल कंटेंट्स आपको लग रहे हैं, आप इन सबको पहले गैदर करके इकट्ठा करके रखेंगे। आप इनके इमेजेस या कोई स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन अगर आपको लग रहे हो तो पहले आप उसको बनाएंगे, या वैसे इलस्ट्रेशन, स्मॉल वीडियो क्लिप्स भी लग सकते हैं। आप कहीं और की वीडियो क्लिप उठा के उसको यहाँ पे बता के आप एडिट कर सकते हैं अगेन। तो सेकंड वाले पार्ट में आप ये सारा डिजिटल विजुअल कंटेंट आप गैदर करेंगे, आप सबको क्लब करके इकट्ठा करके ले आएंगे। मे बी यू कैन पुट इट ऑल इन वन फोल्डर और वेर एवर यू आर कन्वीनियंट विथ। इसको इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे। अब इसके बाद आएगी आपकी सीक्वेंसिंग। ओके, तो आप जो स्क्रिप्ट रखेंगे, स्क्रिप्ट के साथ ये विजुअल कंटेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और ये दोनों के तालमेल में आप पूरी स्क्रिप्ट को ले जाएंगे आगे। दैट इज द सेकेंड स्टेप दैट वी फॉलो। अब आइए देखते हैं वीडियो क्रिएशन में। एक बार जब ये विजुअल कंटेंट्स गैदर हो गए, तो थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। रिकॉर्डिंग में वेर यू एक्चुअली गेट इनटू एक्शन। आप जैसे लाइव कैमरा एक्शन, तो ये एक्शन ये वाली बारी है। अभी कैमरा ऑन है, आप यहाँ से आप या तो कैमरे के सामने आके रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन पुट योर वॉइस ओवर, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यू कैन शो द एंटायर विजुअल्स। ऑल्टरनेटिवली यू कैन मेक अ मिक्सचर ऑफ बोथ। जैसे आप कुछ वीडियोस में देखते होंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग सामने चल रही है, बट पैरेलल टू दैट देयर इज आल्सो द ट्यूटर हुज स्मॉल साइज वीडियो क्लिप इज समवेयर इन द कॉर्नर। वो चीज भी डाल सकते हैं टू क्रिएट एन इंटरैक्शन इन द वीडियो। तो दैट इज अबाउट रिकॉर्डिंग। एक बार आपकी पूरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, तो यू मूव टू द एडिटिंग स्टेज। एडिटिंग में ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में टेक्स एंड रीटेक्स कई सारे होते हैं। देयर वुड बी फ्यू सेक्शंस दैट यू वांट टू डिलीट। कुछ चीजें आपको बाहर से लाके इसके टाइम पे शो करनी है। तो ये सारा पार्ट आपका आता है एडिटिंग में। एक बार आप पूरी वीडियो एडिटिंग कर देंगे, तो यहाँ तक आपकी वीडियो ऑलमोस्ट तैयार हो गई। द फोर्थ स्टेप कैन बी टेकन एज एन ऑप्शनल थिंग। अगर आप अपनी वीडियो को और बेहतर बनाना चाहते हैं और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं फॉर डिफरेंट लर्नर्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्नर्स, तो आप यहाँ पे सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड स्पेसिफिक नरेशंस फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आप कुछ नरेट करके उसमें ओवरलैप कर रहे हो, या फिर आप सबटाइटल दे रहे हो अपनी पूरी वीडियो को, तो सबटाइटल ऐड कर लेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर पीपल विद different abilities to grasp your video. This can be taken as an optional step. और इसके बाद आपकी वीडियो मुकम्मल बन जाती है। The fifth step is publishing and sharing. And by publishing, I mean जो आप उसको फाइनल फॉर्मेट बनाते हैं। MP4 is the commonly used video फॉर्मेट बना के रेडी रखना, और आप उसको वेबसाइट पे डाल रहे हो, या यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हो, या अपनी क्लास में सर्कुलेट कर रहे हो, व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहे हो। तो दैट इज अबाउट पब्लिशिंग एंड शेयरिंग। कोई भी वीडियो क्रिएशन ये 5 स्टेप में तैयार हो जाती है। आई होप ये स्टेप्स क्लियर है आप सबको।
अगर अब तक किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं। एनीवेज इन दी एंड हम ये पीपीटीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आप ही के लिए बनी है ये पीपीटीज। Excuse me, sir. यस मैम। Sir, you told that we are supposed to make a video. मैम आपकी वॉइस पीसेस में आ रही है, आई एम अनएबल टू लिसन टू इट। आप चैट बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं क्या? The session. How much duration should be covered in that video? Are we नहीं, इट्स अ स्मॉल 1 मिनट ड्यूरेशन, और बहुत ही छोटे से टाइम में 1 मिनट का ड्यूरेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो हम आपको ओवर द वर्कशॉप हम आपको 1 मिनट की वीडियो खुद भी हम बनाएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको भी बनाना है। बस ये होगा कि हम अपनी कोई टॉपिक पे बनाएंगे, आप अपनी कोई और टॉपिक पे बनाएंगे। तो हम पैरेलली आप और हम मिलके 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे। फिर जो असेसमेंट का जो टाइम मिलेगा ब्रेकआउट सेशन में, आप उस वीडियो को और बेहतर कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। देन यू कैन सबमिट द वीडियो। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेल, लेट्स गो टू द इनिशियल सेटअप। अभी यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप जूम का ये वाला प्लेटफॉर्म मिनिमाइज करके ये वेबसाइट खोलिए, www.animaker.com। ये वेबसाइट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली गई है अभी, आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए, और मैं साथ में ये वेबसाइट आपको खोल के बताता हूँ। आर यू ऑल एबल टू ओपन दिस वेबसाइट? और आपको स्क्रीन में दिख रही है जो वेबसाइट में बता रहा हूँ? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर, विजिबल। आप सबने ये वेबसाइट खोली होगी, आपको लग रहा होगा, मतलब द फ्यूचर ऑफ वीडियो मेकिंग। आर ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेबसाइट? यस सर। Yes. जी, अभी यहाँ पे ऊपर साइन अप का ऑप्शन है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज क्रिएट एन अकाउंट इन दिस। आप सब यहाँ पे साइन अप को क्लिक करिए, एंड इट विल टेक यू टू द साइन अप पेज। आई अर्ज यू टू फॉलो इट पैरेलल टू दिस, सो दैट हम लाइन बाय लाइन एक साथ चलते रहेंगे। और द इजीएस्ट वे टू साइन अप इज यूज योर गूगल आईडी, वरना वो फिर नई आईडी, नई पासवर्ड, यूजर नेम सब पूछेगा। सो आई एम क्लिकिंग हियर ऑन गूगल अकाउंट, साइन इन विद गूगल। और आप अपना गूगल आईडी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अपना वाला डाल रहा हूँ। और जिसने अकाउंट अपना साइन अप कर लिया है वो चैट में अपना रेस्पॉन्ड डाल सकते हैं कि यू आर रेडी और साइन अप डन, सो दैट वी आर इन्फॉर्म्ड ऑफ इट। किसी का साइन अप हो गया? You should take the select. Yes, sir. Okay. अब साइन अप के फौरी साथ ही ये आपको ये कुछ ऑप्शंस बताएगा। यू कैन स्किप इट एक्चुअली। यहाँ पे अगर क्लोज वाला ऑप्शन है तो आप उसको क्लोज कर लीजिए, एंड आई अर्ज यू टू कम टू द डैशबोर्ड। यहाँ से फाइल, फाइल के अंदर आप जब डैशबोर्ड में जाएंगे तो दिस इज वेयर यू नीड टू कम। मैं दोबारा से बताता हूँ, यू हैव द फाइल हियर। आप फाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड है। आई वांट यू टू कम हियर, देन क्लोज द प्रीवियस टैब। Right. Now all of you are able to see this screen, dashboard जिसे हम कहते हैं जी। जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले इट विल टेल यू टू मेक अ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इज एक्चुअली अ कंबाइंड स्पेस। मान लो जैसे ऑफिस है और 4-5 लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक डिजिटल स्पेस है जहां पे आप कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं। तो आप डिफॉल्ट से जो नाम आएगा अब्दुल शकूर टीम 1, अपने नाम के साथ आपका वहां पे आया होगा। अब वहां पे बस उसको क्रिएट कर लीजिए।
अब जैसे मैं यहाँ पे इसको क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरी वर्क स्पेस क्लिक हो गई। यू कैन स्किप दिस, यहाँ पे अगर आप अपने दूसरे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, बट वी आर स्किपिंग दिस स्टेप फॉर नाउ। और दिस इज इंपॉर्टेंट, it will take you to the personalized step. Let's personalize your experience in three tiny steps, क्योंकि आगे के जो वीडियो सजेशंस आपको आएंगे ना, वो इसी पर्सनलाइजेशन के बेसिस पर आएंगे। सो सिंस वी आर यूजिंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप यहाँ पे माउस ले जाइए, कर्सर, एजुकेशन वर्क, इट हैज 3 ऑप्शंस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वी नीड टू सिलेक्ट स्कूल्स, ताकि वो स्कूल के रेलेवेंट टेम्पलेट्स एंड फीचर्स हमें बताए। तो क्लिक ऑन द स्कूल एंड देन इट विल आस्क यू व्हाट इज योर पोजीशन। और अभी हम एज अ टीचर इसमें साइन अप करके बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर के लिए क्लिक करिए, देन क्लिक ऑन डन। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। यस सर, हाँ सर, वो क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो उसके बाद में आ रहा है वर्क स्पेसेस आर बेटर विद फ्रेंड्स। ओके, आप स्किप कर सकते हैं, नीचे यू विल हैव अ स्किप ऑप्शन देयर। ठीक है, स्किप किया तो हाँ बस ठीक आप है, उसको तो आ skip गया करिए। It will बिजनेस take you वर्क to the पर्सनल personalized space। पर्सनलाइजेशन में आप वर्क। एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सेलेक्ट ऑन स्कूल, फिर स्कूल में यू हैव टू सेलेक्ट टीचर। ओके सर। ओके, एंड अभी मेरी जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ऑल ऑफ यू should arrive here at this space. Once all of you are at this, you can put a message in the group, हम ताकि उस हिसाब से we will proceed further. Are we good to move further? आगे बढ़े हम? Yes, sir. ठीक है, we'll wait for a minute more, ताकि और दूसरे लोग भी इस वाले पेज पर तक आ जाएं। और अगर इन बिटवीन किसी को अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही हो तो आप बताइए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर एक्चुअली में जी सर। सर, ये मोबाइल पे जो है ऐप जो है खोल लिया मैंने, वहां तक नहीं पहुंच पाई, ये जो आपने स्क्रीन शो कर रहे हैं ना, वहां तक नहीं पहुंच रहा। अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है सर आपको? अभी सर वो क्रिएट योर वीडियो, बस वो ऑप्शन आया था, उसके बाद में नहीं हो पाया। और बार बार मैसेज आ रहा है, यू आर यूजिंग एनिमेकर ऑन ए फोन। हाँ हाँ सर, वो फोन में तो फिर ये थोड़ा वो करेगा प्रॉब्लम, यू कैन नॉट यूज इट। मतलब मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ आपको, तो इफ यू कैन स्विच टू अ लैपटॉप पैरेलली, देन इट इज वेरी वेल एडवाइज, ताकि आप उसी तरह की सीरीज फॉलो करें। फोन का यूआई थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फिर, और फिर फोन में आप इतनी आजादी से एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। ये मेरे पास जो मैसेज आया ये है गेट स्टार्टेड विद एनिमेटेड 6 इजी स्टेप्स, तो इनको टिक लगाना है, इसके बाद Steps नेक्स्ट क्या बता रहे कैसे पहुंचेंगे? हाँ, स्टेप्स क्या बता रहा है? गेट स्टार्टेड विद एनिमेटेड 6 इजी स्टेप्स, ऐड अ कैरेक्टर, चूज एक्शन एक्सप्रेशन। ओके ओके, आप शायद टेम्पलेट में चले गए। आप अगली वाली स्टेप में हम वहीं पहुंचेंगे। अगर आप कहीं भी उसको स्किप करके डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, तो आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। सर एक्चुअली मुझे डैशबोर्ड डैशबोर्ड विल टेक यू टू दिस स्टेज, और डैशबोर्ड की आईडी मैं वहां पे डाला हूँ। दिस इज द डायरेक्ट लिंक टू गेट ऑन डैशबोर्ड। एक बार आप सब यहाँ पे आ जाए तो वी विल मूव फर्दर। हम थोड़ा डिले में ही चल रहे हैं, जल्दी करेंगे। ऑलराइट, वी विल मूव फर्दर, और आगे हम ये सॉफ्टवेयर, ये टूल एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू द जूम पेज, और यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस बता रहा हूँ एक बार यहाँ पे देख लीजिए, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो बैक टू द एनिमेकर स्लाइड। तो एक बार सब लोग जूम पे वापस आ जाइए, और जूम पे जो मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस स्क्रीन। ऑलराइट, तो दिस इज योर डैशबोर्ड एंड द लैंडिंग पेज। बेसिकली लैंडिंग पेज में देर आर सेवरल थिंग्स। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रोफाइल दिखेगी, एंड दिस इज वेयर द लॉग आउट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। तो अब जब आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ से साइन आउट करेंगे। इट हैज अकाउंट सेटिंग्स एज वेल, और बेसिक माई प्लान, अगर आप परचेज प्लान के लिए जाते हो तो इट विल बी शोन हियर। ओके, और बीच के देर आर सेवरल ऑप्शंस, ये सब हम अभी स्किप करते हैं, इट्स नॉट टोटली रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल में आइए। लेफ्ट साइड में यूल सी अ बटन क्रिएट, और उसके नीचे जो ऑप्शंस है, देर आर सर्टेन ऑप्शंस।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द डैशबोर्ड, एंड वी आर प्रेजेंटली ऑन दैट डैशबोर्ड। आप उसको यहाँ पे एक ग्रे कलर के बॉक्स में देख सकते हैं, इट इज हाईलाइटेड इन द ग्रे कलर बॉक्स। उसके नीचे जो ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज माई प्रोजेक्ट्स। तो आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, दोज प्रोजेक्ट्स विल बी सेव्ड हियर। और आप कहीं से अपना काम रिज्यूम करना हो तो आप इस प्रोजेक्ट में आके, माई प्रोजेक्ट में आके स्टार्ट करेंगे। शेयर विथ मी इज द कोलैबोरेशन फीचर। अगर आप दूसरे टीचर्स के साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो आप उनके मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, जस्ट एज हाउ यू शेयर थिंग्स ऑन गूगल ड्राइव। तो दोज थिंग्स और दोज प्रोजेक्ट्स विल कम हियर। ओके, नीचे ब्रांडिंग किट वगैरह हम स्किप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है ट्यूटोरियल्स का, इट इज दिस ऑप्शन। ट्यूटोरियल में इनके पास बहुत अच्छी रिपोजिटरी है। टू स्टार्ट ऑफ विथ एनी प्रोजेक्ट, आपको बहुत ही सिंपल गाइडेड फॉर्म में ये ले चलेगा कि कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, कैरेक्टर कैसे ऐड करना है। तो आप यहाँ के वीडियो से सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक ऑप्शंस ऑन द डैशबोर्ड। आई होप ये चीजें अभी तक क्लियर है आपके पास। नाउ टू टेक यू फर्दर, आई इनवाइट माय कोलीग मिस्टर मनीष राणा टू एक्सप्लोर द टूल अलोंग विथ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको बताऊंगा एनीमेकर को कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, इसमें आप कैसे एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट वाला जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस ओपन होंगे, तो आपको करना है क्रिएट अ वीडियो। इस एरो पे आपको क्लिक करना है और ब्लैंक पेज पे आपको क्लिक करना है। क्या आप सभी इस करंट पेज पे आ गए हैं? आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी करंट स्क्रीन। यस सर। ओके, तो जैसा कि सकुर जी ने बताया था कि ये एक फ्री टूल है, बट हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। जब हम फ्री में यूज करते हैं तो वीडियो में एनिमेकर का लोगो आता है। अब जो हम सामने व्हाइट कलर का फ्रेम देख रहे हैं आप सब, इस फ्रेम में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सभी एलिमेंट्स को। जो एलिमेंट्स मिलेंगे लेफ्ट हैंड लाइब्रेरी से, देखो ये सब लाइब्रेरी आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपको प्री बिल्ट थीम्स मिलेंगी। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको थीम्स मिलेगी, आप लेफ्ट क्लिक, वन टाइम क्लिक करके आप यहाँ पे शो कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी जिस भी थीम्स की। सेकंड टाइप है करेक्टर्स का। करेक्टर में आपको बहुत सारे करेक्टर्स नजर आएंगे, मेल फीमेल चिल्ड्रंस के, और जिनमें अपग्रेड वाला आएगा, ये अपग्रेड ऑप्शन आएगा, ये पेड वाला ऐप है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं एक यूज करता हूँ यहाँ पे, ये फ्री वाला करेक्टर है। इसको आपको लेफ्ट हैंड वन टाइम क्लिक करके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस फ्रेम में, व्हाइट फ्रेम में आपको ये शो करेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड वन टाइम क्लिक करते हैं इस अवतार पे या इस करेक्टर पे, तो आपको इसके कुछ मूवमेंट्स नजर आएंगे कि आप इस करेक्टर में किस टाइप के मूवमेंट्स करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, स्टैंडिंग एंड एंगर, स्टैंडिंग एंड क्राइंग, स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। इससे टीचर का देखते हैं, इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे यहाँ क्रिएट योर ओन करेक्टर में, तो आप खुद का भी एक करेक्टर बना सकते हैं। तो आप सभी क्लिक करिए क्रिएट योर ओन करेक्टर में। हाँ, तो आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स हैं, आप इनको कोई भी एक चूज करके इनके हेयर का कलर, स्किन कलर, ड्रेस, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बैक आते हैं अपने मेन पेज में। अब सब मेन पेज में वापस आ जाइए। हम्म, ओके, अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सपोज आप डैशबोर्ड पे हैं। animaker.com में डैशबोर्ड पे ना। हाँ जी, एनिमेकर पे आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। आप इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड वन टाइम क्लिक करेंगे, फिर से आप इस पे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। आपको शो रहा होगा ये एरो क्रिएट अ वीडियो पे। आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको टू ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लैंक पेज और टेम्पलेट्स। तो हमें ब्लैंक पेज पे करना है। जस्ट आपको ये पेज ओपन हो गया होगा सबको।
सबको शो हो रहा होगा करंट पेज मेरा। जब हम इस पे आते हैं तो हम जो भी हमें ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, ये हमारा एक फ्रेम है। इस फ्रेम में हमें सभी एलिमेंट्स पुट करने हैं, जिसमें हमें करेक्टर, इमेजेस, म्यूजिक और अवतार जो हमारे हैं ये पुट करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हमें टेम्पलेट्स में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जो टेम्पलेट है, प्री बिल्ट टेम्पलेट है। इसमें क्या होगा, इसमें बनी बनाई थीम मिलती है। जैसे आपको कोई भी टॉपिक लिया, आपने सोचा है और आपने इस थीम से मैच करा है कि आपको लगता है कि नहीं ये उससे मैच करता है, ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा इस फ्रेम में। तो ये तो टेम्पलेट्स का पार्ट था। अब हम करेक्टर्स पे आते हैं, तो हम करेक्टर्स वाले टेबलेट्स में आते हैं। तो इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। तो जो फ्री करेक्टर्स हैं हम उसको पिक कर लेते हैं। यहाँ पे वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे इस फ्रेम में एक करेक्टर आ जाएगा। इस करेक्टर पे अगर हम वन टाइम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसके मूवमेंट शो होंगे कि आपको कैसे मूवमेंट रखने हैं इस करेक्टर के। लेफ्ट हैंड साइड को सबको करेक्टर शो हो रहे होंगे। सपोज करो मुझे ये स्टैंडिंग एंड टॉकिंग वाला दिखाना है करेक्टर, तो ये उसी तरह मूवमेंट करेगा हर कुछ पल में। आप यहाँ पे क्रिएट योर ओन करेक्टर, आप अपना खुद का एक करेक्टर बना सकते हैं। इस पे वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है, आप सभी कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे क्रिएट और योर करेक्टर पे तो आपको ये पेज ओपन होगा, न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे आपको काफी करेक्टर्स नजर आएंगे। आप मेल चूज करना चाहते हैं, मेल फीमेल फीमेल कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे करेक्टर्स नजर आएंगे। इस करेक्टर को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इनके हेयर कलर, ड्रेस चेंज, स्किन कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने करंट पेज पे आते हैं। सब अपने करंट पेज पे आ गए होंगे। मैंने करेक्टर्स की जानकारी दी आपको, जैसे कि आप अपने करंट पेज पे आ गए होंगे। क्या सभी अपने करंट पेज पे आ गए हैं? ये स्क्रीन पे शो हो रहा है जैसे कि मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब हम इसमें इस फ्रेम में अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं। यहाँ बीजी लिखा है, ये बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड पे चाहिए। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? यस ठीक है, सर। तो जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड चूज कर लिया है अपने फ्रेम के लिए, और आई होप आप सभी ने भी ये फ्रेम चूज कर लिया होगा। इसके बाद हम टेक्स्ट पे आते हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है, आप यहाँ पे हेडिंग क्या डालना है टॉपिक का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कोने पे। तो उसको हमने यहाँ पे मूव किया है और मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, जहां आपको जहां आपके फ्रेम में फिट आ जाए उस जगह। जैसे कि मुझे यहाँ सेंटर पे फिट करना है, मैं इसको क्लिक होल्ड करके सेंटर पे ला सकता हूँ। फिर मैं इसमें डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट का। जैसे कि मैंने रेड कलर चूज कर लिया है तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो सकता है। हम्म, ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर पे आ गए हैं। अब इसके आगे आपको इसमें देखो, अब हम क्या करना है, अगर हम इसे थोड़ा सा प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस करेक्टर को थोड़ा मूव कराते हैं। आपको क्या करना है, वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है इस पे, और आप
तो यहाँ जैसे देख सकते हैं इसमें अफेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से, और डार्क। नेक्स्ट हम यहाँ से +2 करके सेकंड सीन ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट सीन आपका ये हो गया, सेकंड सीन आपका यहाँ प्लस करेंगे तो ये सेकंड सीन आ जाएगा। इसमें हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे सबसे पहले। अब हमने ये वाला बैक कि सबसे पहला करेक्ट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में क्या आएगा हमारा, अब हमें शो करना है कि स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। तो हम प्रॉपर्टीज पे जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आया है शेप, यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी ज्योमेट्री की। वन टाइम लेफ्ट क्लिक करिए इस पे, कुछ स्क्वायर आ जाएगा नजर, फिर आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप इस पे भी, इस इमेज पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस पे डबल लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं, ये साइज को कम कर लेते हैं टेक्स्ट के, ताकि पूरा फिट आ जाए। अब जहां भी आप इसको मूव कराएंगे ये टेक्स्ट भी इसके साथ मूव करेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं लेफ्ट हैंड क्लिक करके। हाँ, सीन 3 हम क्रिएट करते हैं, प्लस करना है, सीन 3 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं फिर से। सपोज करो हमने सेम ये, अब हम एक काम करते हैं, सीन 1 में आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसके इफेक्ट डालना चाहते हैं इसमें, तो हम अवतार पहले, सबसे पहले अवतार डालेंगे इसमें। कैरेक्टर पे जाके अवतार पे क्लिक करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे। यहाँ तक आप सभी कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपका यहाँ तक आ गया है। अब इस कैरेक्टर को हम मूव कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे लाके हम इनको मूवमेंट करवाते हैं। ओके, अब इसमें हम म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक वाले टैब पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड साइड पे बताया था आपको लाइब्रेरी है, यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्री म्यूजिक वाले ही मिल सकते हैं। आपको क्लिक नहीं करना, फिलहाल आपको यहाँ पे सरल जस्ट सुनना है कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही। आपको पसंद आ रही है तो आप लेफ्ट हैंड वन क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे ट्रैक बन जाएगा म्यूजिक का। तो हम पहले कौन सा हमें पसंद, ठीक है। यहाँ से मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है, लिटिल प्लेनेट। और आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है सभी को? नो सर। नो सर, ओके, तो आवाज आप नहीं आ रही है। आपको जो, हाँ, जो आपको म्यूजिक की आवाज आएगी सिर्फ आपके सिस्टम में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम की म्यूजिक है, ये आपके पास नहीं जाएगी। तो आप अपने सिस्टम में सुनिए, को वहां आती है तो बताइए, ठीक है मुझे। ओके, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है आप जस्ट वन टाइम लेफ्ट क्लिक कीजिए और वो नीचे ट्रैक आ जाएगा। आपको देखो पर्पल कलर का एक ट्रैक नजर आएगा, आपकी जो सीन बन रहे हैं नीचे बॉटम में 1 2 3 सीन, उसके नीचे एक ट्रैक नजर आएगा पर्पल कलर का। आ रहा है सभी को नजर? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब इस म्यूजिक को आपको कहां से कहां तक प्ले करना है, इस ट्रैक, ये ट्रैक को आप स्ट्रेस करके आप इसका टाइम मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सपोज करो मुझे ये वाला म्यूजिक सिर्फ ट्रैक 1 तक चलाना है, ठीक है।
तो आप इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करके, इस जगह क्लिक करके, लेफ्ट जगह क्लिक करके इसको प्ले करेंगे, तो जो सीन 1 जो चल रहा है सिर्फ सीन 1 तक ही आपका म्यूजिक चलेगा। जैसे ही आप सीन 2 के पास आ जाएंगे ये म्यूजिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सीन 2 के लिए आप कोई भी म्यूजिक, अनदर म्यूजिक भी आप प्ले वो कर सकते हैं, अपलोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सीन 3 के लिए भी कर सकते हैं। सीन अगर आपको नहीं, यही म्यूजिक आपको प्ले करना है आगे तक, तो आप इसको स्ट्रेस कर सकते हैं जितना चाहे आगे, जितने भी आपके सीन क्रिएट हुए हैं आपने खुद से क्रिएट किए हैं, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक खासियत हो रहा है, अगर आपको देखो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं मोर ऑप्शंस पे, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये नजर आएगा एडवांस एडिट, डुप्लीकेट। अगर इसका डुप्लीकेट, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, मगर पड़ेगी तो आप इसका डुप्लीकेट करके वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। अदरवाइज एडवांस एडिट पे जाएंगे तो यहाँ देखो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे, ये क्या काम करेगा आपका, जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो देखो नंबरिंग घट रही है बढ़ रही है, दिख रहा होगा आपको सभी को, नंबरिंग घट रही है बढ़ रही है सबकी। इसमें ये होगा कि आप जितना नंबर बढ़ाएंगे तो उस म्यूजिक का वॉल्यूम उस सेकंड पे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आपको चाहते हो नहीं, एंड टाइम पे म्यूजिक कम होना चाहिए, तो आप इसको नीचे ड्रॉप कर दीजिए, नीचे नीचे ले जाइए, आपको रखना है 23 पे, तो ये आपका म्यूजिक चलते 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 डाउन हो जाएगा, मतलब आवाज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सर एक बार आप रिपीट प्ले कीजिए। करके देखिए। जी, रिपीट कर देता एक हूँ। बार रिपीट कर दीजिए। म्यूजिक ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं आप? आप मैडम म्यूजिक ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ सर, म्यूजिक कैसे ऐड होगा वो रिपीट कीजिए। ओके, देखो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने जैसे कि यहाँ 3 सीन क्रिएट कर लिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3 सीन्स क्रिएट कर लिए हैं। अब आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो यहाँ म्यूजिक पे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लाइब्रेरी दिख रही है, यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन होगा। म्यूजिक के ऑप्शन में जो प्रीमियम ट्रैक है तो पेड वाला है, फ्री म्यूजिक पे जाएंगे तो आपको फ्री म्यूजिक मिलेंगे। अदरवाइज आप अपना खुद का भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से माई अपलोड पे जाएंगे तो आप यहाँ अपना म्यूजिक खुद का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल में ऑडियो एक रिकॉर्ड करा, ठीक है, उसको लैपटॉप में डाल के वहां से अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से फ्री म्यूजिक मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐप्स ओपन हो रहे हैं म्यूजिक के, आप यहाँ से क्लिक नहीं करना है, आपको जस्ट उस पे कर्सर लाना है उस म्यूजिक के ऊपर और जस्ट लिसन करना है कि आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, क्लिक करना, अदरवाइज मत करना। फिर आप कोई दूसरा चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने स्प्रिंग पे करा, जस्ट क्लिक नहीं करा है, बस ऊपर उसके माउस रखना है, तो म्यूजिक बज रहा है। आप ये आपके सिस्टम में बजेगा, जैसे कि मेरे सिस्टम में मुझे आ रहा है। मैंने यहाँ से लिटिल प्लेनेट वाला पसंद किया तो मैंने यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करा, तो ये ट्रैक नीचे आ जाएगा। ये जो सीन है इसके नीचे ट्रैक, म्यूजिक ट्रैक आ जाएगा नीचे। इस ट्रैक को आपको कितने सीन तक ले जाना है या कितना कम सेकंड चलाना है, ये आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करके, लेफ्ट हैंड क्लिक करके इसको होल्ड रखा है, होल्ड करके मिनिमाइज करा है, तो आपको देखो नंबरिंग घट रही होगी 15.2, 14.9, 14.6, तो ये टाइम घट रहा है कि इतने टाइम में आप इसको प्ले कर सकते हो। और इसके ऊपर सीन 1 है तो मतलब उसी सीन, जो सीन चल रहा है, जैसे सीन 1 है ये सीन 1 तक ही यहाँ तक प्ले होगा। अगर आप इसको कंटिन्यू फर्दर प्ले करना चाहते हैं सीन 2 के साथ, तो आप सीन 2 तक ले जाके इसको प्ले कर सकते हैं। और आप साथ ही साथ इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके सीन प्लस म्यूजिक दोनों सिंक्रोनाइज हुए नहीं हुए, तो यहाँ पे क्लिक करके हम प्ले करते हैं, तो मेरे सिस्टम में मुझे सीन 1 के साथ म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। तो आप भी एक बार चेक कीजिए कि आपके सीन के साथ, आपका सीन और उसके साथ म्यूजिक प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है।
सर इसको म्यूजिक को जो हमने यदि अपना अपलोड करें तो इसको हैंड टू हैंड ट्रिम भी कर सकते हैं क्या? यदि मान लो कि मैंने कोई म्यूजिक लिया और मुझे फ्रंट वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा नहीं डालना है, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या सर? मैं कोई पार्ट ट्रिम कर सकता हूँ अपलोड करने के हाँ बाद? सर, जैसे कि ट्रिम की, जैसे मैं मैक्सिमम मिनिमाइज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये ट्रिम का ही काम कर रहा है। आपको कितने सेकंड्स में, किस सीन में कितने सेकंड्स के बीच में चलाना है। सपोज करो मेरा जो सीन बना है वो मेरा है 10 सेकंड्स का, ठीक है। और मैं इसका टाइम भी बढ़ा सकता हूँ सीन का, जैसे कि इस पे सीन 1 पे क्लिक करके, ठीक है, वो यहाँ से स्ट्रेस कर सकता हूँ इसका टाइमिंग। यहाँ पे देखो 14.8 सेकंड, 14.9, 15 सेकंड्स आ गया, ठीक है। यहाँ जैसे 15 सेकंड्स आ गया, मैंने सीन 1 15 सेकंड्स का क्रिएट किया है। और जो नीचे म्यूजिक ट्रैक है, आप चाहते हो कि इसको सीन 1 स्टार्ट होने के 6 सेकंड बाद चलाना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करो, 6 सेकंड पे लाओ। देखो यहाँ ऊपर आपको 6 सेकंड नजर आ रहा होगा, यस सर। ठीक है। माउस को होल्ड करके आपको 6 सेकंड तक लाना है और आपको लास्ट तक चलाना है, 15 सेकंड तक, ठीक है। तो ये आपका म्यूजिक 6 सेकंड से स्टार्ट होगा और 15 सेकंड पे एंड हो जाएगा। और थैंक यू। जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपना म्यूजिक अपलोड करके करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना म्यूजिक अपलोड करके, मगर ये पेड वाले में आएगा सर। जब आप पेड इसको खरीदेंगे तो आप अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, फिर उसको जहां चाहे वहां प्ले कर सकते हैं, जिस सीन के साथ चाहे। अच्छा, इसमें एक फीचर और है कि आप सपोज करो म्यूजिक लाउड नहीं चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि 12 से 15 सेकंड के बीच में म्यूजिक का वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो आप देखेंगे म्यूजिक ट्रैक में ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक नहीं करा है, इस पे जस्ट कर्सर रखा है, तो ये मोर ऑप्शन 3 ऑप्शन मोर ऑप्शन दिखा रहा है 3 डॉट्स पे। आप इस पे 1 टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, प्ले करना है, एडवांस एडिट। आप एडवांस एडिट पे जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगी व्हाइट। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे कुछ, मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब इस पे एडवांस एडिट पे जाता हूँ तो आपको देखो ये नजर आ रहा होगा, ये सर्कल। तो आप इस सर्कल को आप चाहते हो कि यहाँ 9 सेकंड से वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो आप इसको डाउन करेंगे ना, तो खुद ब खुद नंबर कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम का जो लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है। फिर आप इसको बैक करके प्ले कर सकते हैं। तो अब मेरे सिस्टम में आवाज नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ट्रैक जो है, म्यूजिक ट्रैक जो है, वो 3 सेकंड से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूँ। आफ्टर 3 सेकेंड्स म्यूजिक प्ले होने लगेगा और ये प्ले होते होते 15 सेकेंड्स तक आएगा। और जैसे कि मैंने इसमें एडिट किया था कि मुझे 9 से 15 सेकेंड कम वॉल्यूम चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सर इसके फ्री वर्जन में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो एंड फोटोग्राफ्स? नहीं सर, फ्री वर्जन में आप इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप 25 GB तक। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैंने वीडियो के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे अपलोड अपलोड वाले सिंबल पे क्लिक किया, तो यहाँ आपको 25 GB तक अपलोड कर सकते हैं। फ्री वर्जन में? हाँ जी, फ्री वर्जन में इमेज भी आप डाल सकते हैं। सकुर जी ने आपको स्लाइड्स दिखाई होगी शुरू में, हम्म। जैसे कि आप स्लाइड्स देखिए हमारी, उसमें 3 वीडियोस पर मंथ विद वाटर मार्क, 2 मिनट्स रेंडरिंग का मिलेगा आपको। जो मैं ये वीडियो अब क्रिएट कर रहा हूँ, ये सिर्फ 2 मिनट्स की बनेगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर आप फ्री में कोई वीडियो बना रहे हैं, तो आपको जो भी आपका कंटेंट होगा वो 2 मिनट्स के अंदर का होना चाहिए, ओके। ओके। सर इसका पेड वर्जन प्रोवाइड कराओगे ना आप बाद में? आपको ये कम्युनिकेशन मिल जाएगा बाद में कि फ्री होगा पेड होगा। ये फ्री वर्जन में तो ज्यादा कोई फीचर्स हमें मिल नहीं रहे हैं। हाँ जी, इसकी इंफॉर्मेशन सर आपको मिल जाएगी बाद में। फिलहाल हम इसको वीडियो को थोड़ा सा जो बेसिक पार्ट है इसका सीखते हैं। सर ठीक है, इसमें इसी की जो हम देखते से जो सीन कहेंगे, इस सीन जी में खुद की वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है क्या सर? हाँ जी, देखो खुद की वॉइस का कैसे ऑप्शन आएगा। आप पहले करेक्टर बनाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने करेक्टर चूज किया है,
ठीक है, मूवमेंट भी दिखा देंगे। ठीक है, अब आप इस पे वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको एक्शन प्लस का ऑप्शन आएगा, देखो आ रहा है, और एक ये आ रहा है लिप सिंक्रोनाइज का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिप सिंक्रोनाइज करेंगे। आप इस पे क्लिक करते हैं वन टाइम तो आता है रिकॉर्ड वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच। देखो टेक्स्ट टू स्पीच में क्या आप वर्ड जैसे आप लिखने देते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग कोऑर्डिनेटर एंड टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो आप टाइप कर दीजिए और ये ऑटोमेटिक सेम इंग्लिश में बोलेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 10 सेकंड्स का, जैसे कि दिखा रहा है, इसमें बोलता हूँ। यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा आपको माइक्रोफोन, ये प्ले हो चुका है, और आपको यहाँ बोलना है, अपनी रिकॉर्डिंग ऐड करनी है। कि मैं दोबारा से कर देता हूँ उसको। हेलो एवरी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीचिंग कोऑर्डिनेटर एंड इट्स टाइप। इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ प्ले करोगे, यहाँ पे आ गए नहीं, एक मिनट, फिर से क्लिक करते हैं लिप सिंक्रोनाइज। हेलो एवरी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टीचिंग कोऑर्डिनेटर एंड इट्स टाइप। इसको 10 सेकंड्स तक चलने देना है। ठीक है, अब इसको जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपने जो बोला है एकदम सीन के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आपका ये ट्रैक नीचे रेडी हो गया। अब आपको इसको किस सीन के साथ सिंक्रोनाइज कराना है, आप उस तरफ इसको मूव कर सकते हैं। आप भी एक रिकॉर्ड कर लीजिए वॉइस और अपने ट्रैक के साथ सिंक्रोनाइज कराइए। हाँ सर, अभी हम बात कर रहे थे कि वीडियो 25 GB है, तो यदि वीडियो फाइल हम इसमें डालेंगे सीन में तो वो विजिबल होगी। और सर ये वीडियो फाइल है और उसका ऑडियो, वीडियो का जो खुद का रिकॉर्डेड ऑडियो है और जो हम म्यूजिक इससे इंसर्ट करेंगे, तो वो दोनों में सेटिंग हो पाएगी या फिर एक ही ऑडियो चल पाएगा सर? आप कहना चाहते हैं कि आपने जो वीडियो अपलोड करी यहाँ पे उसमें म्यूजिक होगा, उसमें जैसे ये मान कह लो रहे कि हैं? हाँ, मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो ले लिया, तो ओके, बैकग्राउंड वॉइस होगी उसमें या कोई भी डायलॉग है, तो उसको मैं उस समय यदि मैं उसके साथ लाइट म्यूजिक देना चाह रहा हूँ, कई बार पीछे हाँ दे सकते हैं। मैं आपको करके जी मैं सर। आपको करके दिखा देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। अपलोड में जाके, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे, ये अपलोडिंग हो रही है। तो जैसे कि यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड होने का, तो आपको ना सर यहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इस सीन 3 बन जाएगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक। और आप सीन 2 सीन 3 को अरेंज करना चाहे तो जैसे यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कि आपको सीन ऊपर लाना है तो यहाँ होल्ड करके ऊपर नीचे कर सकते हो सीन्स को। ठीक है, तो जो आपको वीडियो को फर्स्ट में सीन में दिखाना है, सेकंड में, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ओके, जैसे ये आ गया है, मैंने क्लिक करा तो देखो ये आ गया है सर। अब इसमें आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ म्यूजिक पे, फ्री म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ लेफ्ट वन टाइम क्लिक करना है, तो नीचे आपका ये म्यूजिक आ जाएगा। फिर आप इसको जो कह रहे थे आपकी लाइट म्यूजिक रखना है, तो आप इसको डाउन कर सकते हैं इसकी वॉल्यूम पूरे सीन में। ओके, फिर आप चेक कर सकते हैं प्ले करके कि जैसा आप एडिट करना चाहते हैं क्या वैसा एडिट हुआ है नहीं हुआ। यार अंधेरा हो रहा है। इसके आगे जब ठीक है, तो ये सब वीडियो क्रिएट एलिमेंट पुट करने के बाद आपको पब्लिश करना है अपनी वीडियोस को। आप प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे सिंबल दिख रहा है प्रीव्यू का। आप शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हो किसी फैमिली या कलीग के साथ। तो आप जब शेयर करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एडिट, कैन एडिट और कैन व्यू। तो आप सिर्फ उनको दिखाना चाहते हैं तो कैन व्यू, आप चाहते हो नहीं वो भी कुछ एडिट कर दे इसमें, तो कैन एडिट का ऑप्शन क्लिक करके आपको यहाँ एक कॉपी करना है। कॉपी करके आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया के थ्रू उनको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में आते हैं हम पब्लिश में। हम इसे अब इसे एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं MP4 में, तो हम पब्लिश में जाएंगे। पब्लिश में जाके डाउनलोड वीडियो में जाएंगे,
जैसे कि आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा डाउनलोड वीडियो, आपको जीआईएफ में कन्वर्ट करना है तो जीआईएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट फेसबुक में अपलोड करना है तो फेसबुक का बटन दबा के, यूट्यूब पे अपलोड करना है तो यूट्यूब का, और अदर भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप डायरेक्ट इसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि हमें अपने पीसी में, सबसे पहले आप अपने पीसी में डाउनलोड करना, तो यहाँ डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। देखो जैसे कि इसमें आ रहा है फ्री यूजर कैन यूज मैक्सिमम 2 मिनट, तो हमारा तो 2 मिनट से कम का नहीं, 2 मिनट से कम का नहीं है, देखो एरर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, इस वाली वीडियो को। सिर्फ जो मेरे पास 16 सेकंड्स का वीडियो था उसको डाउनलोड करते हैं। पब्लिश में जाके डाउनलोड वीडियो पे जाना है आपको, यहाँ वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने रखा है कोऑर्डिनेटर, वीडियो का नाम लिख लिया कोऑर्डिनेटर वीडियो। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड ऑप्शन, आपको किस फ्रेम में या किस पिक्सल में आपको इसको डाउनलोड करना है। एक हमें बस फ्री में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, SD 480 पिक्सल और HD हाई डेफिनेशन 720 पिक्सल, बाकी सब आपके पेड वाले हैं। तो 720 बेटर है फ्री में, हम इस पे क्लिक करके यहाँ MP4 सिलेक्ट कर लेना, फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड इसको रेंडरिंग होने में। ये जब रेंडरिंग हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पीसी में। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद आप अपने डेस्कटॉप में इसको सेव कर सकते हैं। इसके आगे के लिए सकुल जी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। हाँ मनीष सर, मैं एक चीज पूछ सकता हूँ यदि आपकी परमिशन है तो? हाँ जी सर। मैं एक्चुअल में अभी छोटा सा मैंने डाउट लिया था, आपने मेरे लिए वीडियो भी डाला, अपलोड किया। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, अब मेरे पास जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें भी वॉइस है और जो म्यूजिक डाला वो भी है, आपने रिवर्स बताया मुझे। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अपलोड वीडियो डाला, क्या उसकी वॉइस को मैं खत्म कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ क्या सर? नहीं सर, उसकी वॉइस जैसी है आप वो जो वैसी आप जो आपकी प्रीपेड वीडियो है जिसमें म्यूजिक डला हुआ है, तो या तो हाँ। आप किसी वीडियो एडिटिंग ऐप के थ्रू उसको, उसके म्यूजिक को म्यूट करो, मतलब रिमूव करो, ये ओके तरीका है। आप ओके सर। चाहते हैं कि उसका म्यूजिक ना आके आप एनीमेकर के थ्रू कोई म्यूजिक डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स वीडियो एडिटिंग का लेना पड़ेगा, वहां पे आप उसको रिमूव करके फिर अपलोड कीजिए, ये रास्ता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके आगे सकुर जी आपको इंस्ट्रक्शन करेंगे। थैंक यू मनीष जी फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। आप सब आई एम एक्सपेक्टिंग लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे थे। हम विल क्विकली वाइंड अप दिस सेशन। वैसे तो हमारा टारगेट था कि हम इसके बाद आपका जो है ना एक असेसमेंट, मतलब असेसमेंट का प्लान हमारा ब्रेकआउट रूम्स के साथ था, जहां पे आप खुद 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ बनाएंगे, बट आई थिंक वी हैव टू रश थ्रू अ लिटिल बिट। तो अभी मैं नेक्स्ट आप लोग के लिए जो है ना असेसमेंट यहाँ बताऊंगा। दिस इमेज इज ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी डाली गई है, और इसके साथ आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल रही है। ना व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप ये बहुत ही बेसिक सेटिंग्स हमने इसमें सीखी है। आफ्टर दिस सेशन आप थोड़ा और टाइम स्पेंड करिए अपने साथ, या व्हेनेवर आज के दिन में अब जैसा भी आप फ्री हो, और थोड़ा कुछ टाइम अपने साथ इस सॉफ्टवेयर के साथ बिताइए, एक्सप्लोर अ फ्यू मोर ऑप्शंस, एंड एंड में आपको एक वीडियो बनानी है। वो वीडियो जैसे मनीष जी बता रहे थे MP4 में रेंडर करने के लिए, आप MP4 में रेंडर करके असेसमेंट फॉर्म में आप वो अपलोड करेंगे। सो वी हैव गिवन यू स्मॉल वीडियो, स्मॉल गूगल फॉर्म लिंक, उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी मेंशन करके ये फाइल अपलोड करनी है। ओके, एंड दीज आर द स्मॉल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वीडियो दैट यू वांट टू मेक। एक शॉर्ट टॉपिक अपने सब्जेक्ट एरिया से आप सोचिए, और उस शॉर्ट टॉपिक के ऊपर आप को वीडियो बनानी है। क्रिएट अराउंड 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड की आप वीडियो, मान लो 3 सीन के अंदर आप ये कवर कर सकते हैं। यूज द फॉलोइंग फीचर्स। एक तो रेलेवेंट बैकग्राउंड इमेज आप यूज करिए, कोई एक एनिमेटेड कैरेक्टर उसमें होना जरूर चाहिए, और जिसके दो डिफरेंट एक्शंस हो। जैसे मनीष जी बता रहे थे एक्शंस के लिए, तो आप उसको एक सीन में कोई एक एक्शन और दूसरे सीन में कोई दूसरा एक्शन देके
इसमें बनाइए। देन यूज द टेक्स्ट एंड शेप्स विद एनिमेशन। तो जितने टेक्स्ट या शेप्स आप अभी बताए हैं, तो उसको कोई ना कोई फॉर्म में एनिमेट करके उसको आप यूज करिए। एंड एटलीस्ट 2 अलग अलग सीन्स यूज करके बनाइए। वैसे तो अराउंड 30 सेकंड की वीडियो आपको जो है ना 3 सीन्स के अंदर कवर हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वेस्ट यू टू मेक। और ये वीडियो जब आप फाइनल इसको MP4 में कन्वर्ट करके जब आप अपलोड करेंगे, तो वी विल रिसीव दिस इन गूगल फॉर्म, और ये आपका असेसमेंट का पार्ट होगा। एंड फ्रॉम हियर वी विल मूव फर्दर। तो आई होप अभी के लिए इतना काफी है। एंड ऑल्सो मैं जानता हूँ आप सबके कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम कल के सेशन के बाद वी कैन कीप स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो आप कल भी इसके ऊपर आपके सवाल पूछ सकते हैं। अभी क्योंकि ऑलरेडी 4:30 क्रॉस हो गया, आई विल क्विकली वाइंड अप सेशन। और ये स्किप करके I invite our colleague Divya to teach to demonstrate OERs, Open Educational Resources, about वीडियो कंटेंट क्रिएशन। आप ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स वगैरह से आप और अपना सेल्फ लर्निंग सेल्फ पेस पे चला सकते हैं। सो आई इनवाइट आवर कलीग दिव्या टू एक्सप्लेन यू। Hello everyone, good evening. Hope you are enjoying this session. So if yes, then thumbs up. Thumbs up. So yeah, we are gonna learn about OER, Open Educational Resource. You probably know about it, but still, I want to talk about that. These are the platforms which are free and open for use. Okay, so here we will learn about the platforms which will help to create video content. This is the MOOC course of SWASF open online course, and yeah, in this course you will get to learn multiple media platforms, script writing, basics, editing, and much more. This course title is Media Content Production and Multiple Platforms, and created by KS Kusuma, who is one of the faculty member of Jamia Millia Islamia. He will join us or give the lecture on the 2nd of November, sorry. So we can learn from this course that how to create the better videos. This is the Animaker Next application or website, which we have learned about through Mr. Shakur and Manish. Through this, we can also get the extensive tutorial videos that covers the topic from the basics up till the master level. I hope itna aapko clear hua hoga. Can I move further? Okay, so this is the next OER platform by Arkansas State University, which provides a few courses on various tools involving audio and video production. It covers advanced software like Audacity, VVideo, etc. With the help of these courses, you can learn the A to Z of video production and use it in the professional way. So you can see how VVideo and Audacity and a lot of softwares and websites are there which you can learn. So you can take inspiration from other websites as well, like Khan's Academy. So it creates exceptionally video lectures. As you all know, you can take inspiration from this technique, teaching techniques anytime. This is basically a YouTube channel of crash course, and this provides engaging crash courses, learning of the science education, but it covers a wide variety. From here, you can pick design and as inspiration.
So this platform is one of my favorite. Its name is Edpuzzle. This will help you to get good content videos. You can create the video, you can edit it, you can crop it, you can record it or share it with your students as well. Like this one. So this is the video which is already there on this platform. You just need to search on the search bar and write the topic which you want to search it. This is the video which I created, you create as well. So just go to create the videos and share the screen and just record it. You can trim it and add the thumbnail as well. This is the question section where you can upload the question. It can be MCQs, open-ended, or you can add the notes as well. After giving the concept clarity in video, they can attempt the quiz or questions as. This is the part where you can upload the video, make the folder and dump all the videos in one place or add the playlist as well. Hope it is clear. So after uploading, the video will appear in preview. This is the place where you can share your content as well through Google Classroom and Microsoft Teams, etc. So yeah, if you have further doubts, you just share it with me. I will share all the links and this PPT with you all. Yeah, that's it. Thank you. Shaku will come. Thank you, Divya, for sharing with us the open educational resources. Well, to wrap this day up, हमने आज आपको एनिमेकर सॉफ्टवेयर बताया और हमने उसके बेसिक्स बताया आपको. We have learned how to create a small 3-second video, a small 30-second video, जिसमें हमने देखा किस तरह कैरेक्टर्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड सीन हम एडिट कर सकते हैं. और आफ्टर दिस वी हैव सीन अबाउट वीडियो रेंडरिंग, जहां पे हम MP4 में कन्वर्ट करके इस वीडियो को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं. दीज वर द बेसिक स्टेप्स. अब हम असेसमेंट जैसे आपके साथ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा. आफ्टर दिस मीटिंग ये सारी पीपीटी हम आपको देंगे एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू क्रिएट. एंड आई कैन ऑलरेडी सी द एंथुसियाज्म. किसी ने अपना पोएम को वीडियो फॉर्म में अपलोड किया है, तो दैट्स अ वेरी good and motivating just we can close this workshop. अगर आपको कुछ specific doubts वगैरह हो तो आप WhatsApp group में पूछ सकते हैं. We will keep the group active and we will be promptly responding to your queries there. और आप इसके साथ we are expecting interesting videos and very creative style of videos being submitted to us. तो और इसके even after this आप अपने teaching style में एक general practice इसे बनाइए. And let's meet in the next day. Day 2 के लिए एक छोटा सा नोट है मेरे पास. I want all of you to pay attention here for a while. Day 2 के लिए हमारा जो है ना जो टॉपिक है, we would be dealing with concept maps. किस तरह हम बहुत ही engaging concept maps बना सकते हैं. The title for day 2 is crafting concept maps with technology. और हम कल एक स्पेसिफिक टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है XMind. आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट मैंने खोली है और ये डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर चलेगा. तो आई वांट यू टू डाउनलोड दिस इन योर लैपटॉप एंड कीप इट रेडी बिफोर द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स टुमारो. तो ये जो लिंक है डाउनलोड की, ये भी आपके साथ शेयर करी जाएगी. आप यहाँ पर लिंक पे जाके विंडोज वाले, अगर आपका विंडोज का सॉफ्ट लैपटॉप है तो विंडोज वाला डाउनलोड करिए. इट विल गिव यू अ स्मॉल सेटअप फाइल. वो सेटअप को आप डबल क्लिक करेंगे तो इट विल इंस्टॉल ऑटोमेटिकली. तो आप ये करके कल के लिए रेडी रखिए, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द XMind सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप. और आई होप वी विल connect with the same enthusiasm tomorrow at 3 p.m.